آئل ریفائنریز پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون۔ ریفائنریز کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اپ گریڈیشن ناگزیر، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری۔ وزیر اعظم کی اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم کی دعوت پر کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر ال احمد الصباح آج سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ کویت کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کویت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ کا دورہ دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کے فروغ کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطری ہم منصب و کمانڈر داخلی سلامتی فوج شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ سیکیورٹی سے متعلقہ شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے سمیت خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا قطری ہم منصب سے ان کے والد سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ LA1 میرپور 1 یہاں سے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کا اسم شریف ہے جناب اظہر صادق، اور انہوں نے 15,427 ووٹ حاصل کیے، اور دوسرے نمبر پر محمد افسر شاہد جنہوں نے 9,832 ووٹ لیے، اور کامیاب ہونے والے امیدوار کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ آزاد جموں کشمیر عام انتخابات کا پہلا مرحلہ 8 حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 5 جبکہ پیپلز پارٹی نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ باقی 5 میں سے 4 نشستوں پر بھی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو واضح برتری حاصل۔ مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں میں قانون ساز اسمبلی کی نشست 1 میرپور 1 سے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب۔ میرپور 4 سے چودھری رخسار احمد 22,376 ووٹ، LA7 بھمبر 3 سے طارق فاروق 37,613 ووٹ، LA12 کوٹلی 5 سے راجہ ریاست خان 35,168 ووٹ، جبکہ LA11 کوٹلی 4 سے راجہ محمد آصف نے 26,270 ووٹ لے کر میدان مان لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں میں LA2 میرپور 2 سے قاسم مجید 13,378 ووٹ، LA8 کوٹلی 1 سے ظفر ملک 19,535 ووٹ، جبکہ LA3 میرپور سے چودھری یاسر سلطان 12,590 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل پرامن رہا۔ سیاسی جماعتوں نے بھرپور انداز میں انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ انتخابی عمل شفاف انداز میں مکمل ہوا۔ کشمیر میں شیر دھاڑے گا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر بیان۔ آزاد جموں و کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفاف طریقے سے مکمل ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابات کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے پہلے مرحلے کے سلسلے میں اس وقت ہم میرپور میں موجود ہیں۔ آج آزاد کشمیر میں 12ویں عام انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات ہیں۔ پولنگ ایجنٹ اندر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔
आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की भरपूर कवरेज, लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए पीटीवी के नुमाइंदे हर हल्के से बराह रास्त रिपोर्टिंग में मसरूफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल सबसे पहले और मुस्तनद अंदाज में इंतखाबी मैदान से बराह रास्त मनाजिर और नताइज, पीटीवी न्यूज़ की इंतखाबी मार्के पर खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक के शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आबी ज़खायर के लिए तेज़ी से इक़दाम किए जा रहे हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़ेरी इदारों को मज़ीद बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से मौसर अंदाज में निपटने के लिए भरपूर काम कर रही है। पहाड़ी, मैदानी और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग हिकमत अमली तैयार की गई। वफाकी वज़रा की NDMA में ब्रीफिंग के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। NDMA ने मानसून के लिए मौसर पेशगी इकदाम यकीनी बनाए। रवां मानसून में गैर मामूली बारिशों का इम्कान है। शुमाली और मशरकी पाकिस्तान मानसून से ज्यादा मुतासर होने का इम्कान। शुमाली रीजन में मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं। NDMA हुकाम की मानसून इकदाम पर वफाकी वज़रा को ब्रीफिंग। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। FC बलूचिस्तान शिमाल का ज़िला नसीराबाद में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। मौसर इमदादी कार्रवाई करते हुए मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन को बर वक्त इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने के साथ साथ मुतासरीन में खुराक, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी इमदादी सामान तकसीम। शदीद बारिशों से मुतासरा जगलोड्स करतूम शाहरा पर फरामोश पुल की बहाली का काम मुकम्मल। पुल को हंगामी बुनियादों पर तामीर नौ के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आमद व रफ्त बिला तात्तुल जारी। तर्जुमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में जारी हैं। ईरान हमारे साथ मुआहिदा चाहता है। अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। ईरान अब अपनी साबिका सलाहियत के सिर्फ तकरीबन 7% की रफ्तार से ड्रोन तैयार कर रहा है। अमरीका ने ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत मिशिगन में खिताब। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान, ओमान और कतर की सालिसी में पैगामात का तबादला जारी। ईरान की तस्दीक। ईरान की अवलीन तरजीह अवाम, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की सरीख खिलाफ वर्जी की। दुनिया को उम्मीद थी कि इस बार अमरीका अपने वादों की पासदारी करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ऑस्ट्रिया के सरकारी TV को इंटरव्यू। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के साथ आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 6% से ज़्यादा की कमी के साथ $82 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत 7% से ज़्यादा की कमी के साथ $88 फी बैरल पर आ गई। वफाक और पंजाब का रेलवे तरक्याती मनसूबों पर ताउन मज़ीद मुस्तहकम। वज़ीर रेलवे और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। 8 सब अर्बन रेलवे रूट्स, ग्रीन रेलवे कॉरिडोर और लेवल क्रॉसिंग्स की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमत पहली बार रेलवे तरक्याती मनसूबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी। पाकिस्तान के टेलीकॉम के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान डिजिटल मईशत की जाने बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म डिजिटल मईशत पर पेशरफ्त का खुद जायजा ले रहे हैं। बरामदात पर मबनी मईशत का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख़ाज़ा और वज़ीर ममलकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कयानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान की टीमें 1 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। 5वीं पोजीशन के मैच में काज़ाकिस्तान ने नेपाल को 3-0 से हरा दिया। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त।
جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مہمان ٹیم کا پرتپاک استقبال۔ جنوبی کوریا اور پاکستان کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 30 جولائی، دوسرا 1 اگست، تیسرا 4 اور چوتھا 7 اگست کو اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز تروبہ میں پہلا ٹیسٹ۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں 7 وکٹوں پر 126 رنز، ویسٹ انڈیز کو پاکستان پر 155 رنز کی مجموعی برتری حاصل۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 282 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 311 رنز بنائے تھے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ واشنگٹن ڈی سی میں اے ٹی پی 500 ٹینس ٹورنامنٹ، امریکہ کے ٹیلر فرٹز پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اٹلی کے لورینزو میسیچی اور الیجاندرو تابیلو کی بھی اگلے مرحلے میں رسائی۔ خواتین سنگلز میں کینیڈا کی لیلا فرنینڈز کا فاتحانہ آغاز، پولینڈ کی ماگدا لینیٹ کو ہرا دیا۔ نیا سواردیاز تیسری بار سرف فری سٹائل ورلڈ چیمپئن بن گئی۔ گرین کناریا ایونٹ میں آسٹریا کی ویولا لپیش کی پہلی پوزیشن، رنر اپ رہنے کے باوجود نیا سواردیاز عالمی چیمپئن قرار۔ مردوں میں کرس میک ڈونلڈ کی سیزن کی پہلی کامیابی، ٹائٹل کی دوڑ برقرار۔ اور چین کے لیانگ پینگ لی پہلی بار ورلڈ ہائی لائن چیمپئن بن گئے۔ لیانگ کا نیا عالمی ریکارڈ 60 میٹر ہائی لائن 23.05 سیکنڈ میں عبور کر لی۔ جرمنی کے سباستیان ایگر نے فری سٹائل، ساشا گریل نے کمبائنڈ ٹائٹل جیت لیا۔ سیسیلیا سٹاک دوسری بار تینوں خواتین کیٹیگریز کی عالمی چیمپئن بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سلمہ کوثر۔ اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئل ریفائنریز کی اپگریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ پاکستان کے توانائی کے تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز نہ صرف ملک کی توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی بلکہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ موجودہ ریفائنریز کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کی اپ گریڈیشن ناگزیر ہے۔ یورو 4 اور یورو 5 معیار کے ایندھن کی پیداوار، پاکستان کے بین الاقوامی ماحولیاتی وعدوں کی تکمیل، فضائی آلودگی میں کمی اور عوام کو بہتر معیار کا ایندھن فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت کی تاکہ شعبہ توانائی میں مسابقت، شفافیت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے۔ محمد شہباز شریف نے نئی پالیسی کے نفاذ کے بعد اس پر مؤثر اور بروقت عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ہدایت کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے اصلاحاتی عمل کو تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ محمد شہباز شریف نے براؤن فیلڈ ریفائنریز کے حوالے سے ترمیمی پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 کی ترویج کے لیے قطر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں روڈ شوز منعقد کرانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے براؤن فیلڈ ریفائنریز کے حوالے سے ریفائننگ پالیسی میں ترمیم کے حوالے سے وزیر پیٹرولیم اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزرو بڑھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو ملک میں آئل ریفائنریز کی اپگریڈیشن، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور پالیسی پر عمل درآمد کی پیشرفت پر تفصیلی بریف کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ براؤن فیلڈ ریفائنریز کے حوالے سے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں کی گئی ترامیم کا مقصد دوست یورو 5 کی مطابقت رکھنے والے پیٹرول اور ڈیزل کی پیداوار کو یقین بنانا، فرنس آئل اور کم معیار کی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی لانا ہے۔
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अस्तवा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान कुवैत के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा पाक कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे और इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये दौरा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोहा में कतरी हमनसब शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा सानी से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी और दाखिली उमूर में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, खत्ते के मौजूदा सूरत हाल, अमन अमान के इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ बाहमी मफादात के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इयादा किया। मोहसिन नकवी ने साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया। वफाकी वज़रा ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत वज़ीर आज़म ने मानसून के आगाज़ से पहले ही एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी कायम की ताकि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़रूरी हिफाजती इक़दाम पर वक्त कर सके। वफाकी वज़रा की NDMA में ब्रीफिंग की तफसील बताएंगे उमर फारूक। मनसूबाबंदी और तरक्की, मौसमियाती तब्दीली, खजाना, इत्तलात व नशरियात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक और आबी वसाइल के वज़रा ने इस्लामाबाद में मानसून के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात के नतीजे में फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग जैसे मसाइल का सामना है। इसी खतरे को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने मानसून के आगाज़ से कबल ही इक़दामात का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने मॉनसून मौसम शुरू होने से पहले एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाने के लिए एमरजेंसी कमेटी बनाई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। हफ्तावार इजलास किया और ये कार्रवाई तकरीबन 2 महीने पहले शुरू कर दी गई ताकि हम सूबाई हुकूमतों को और जो PDMAs हैं उन्हें बर वक्त मुतला करें इन ख़तरात से और वो उसके लिए पेशगी इक़दामात कर सकें। मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत ने मानसून के दौरान पहाड़ी और मैदानी इलाकों की ज़रूरियात और शहरी आबादी को महफूज बनाने के हवाले से मखसूस हिकमत अमली तैयार की है। इस मर्तबा नॉर्थ में बारिशें ज्यादा होंगी और दूसरा ये कि साउथ में बारिशें कम होंगी। इसके लिए हमने डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी बनाई है, बड़ी सेगमेंटेड और बड़ी फोकस्ड स्ट्रैटेजी है। नॉर्थ के लिए और है, प्लेन्स के लिए और है, शहरों के लिए और है, पैदावारी गांव की जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए और है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली हमारे बड़े चैलेंजेस हैं। आलमी बैंक के 10 साला फ्रेमवर्क के तहत मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। There are 2 existential issues for Pakistan. Population, the second is the climate change. और दोनों में whole of the government approach is the right way forward. जो 10-year country partnership framework which was negotiated with the World Bank, $2 billion का ये पूरा प्रोग्राम है per year for the next 10 years. Which means for climate related interventions हमारे पास $700 million available हैं every single year. We have to come up with investable bankable projects. वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रवां साल मानसून बारिशों के हवाले से हुकूमती रद्द-ए-अमल इंतहाई मुअस्सर रहा है। NDMA और तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों ने मिलकर अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया और बर वक्त मालूमात अवाम तक पहुँचा रहे हैं। The response has been very effective. और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के बिहाफ पे वी स्टैंड कमिटेड कि मज़ीद आगाही के लिए, लोगों को बर वक्त इत्तला देने के लिए तमाम मिनिस्ट्रीज डिविजन्स के साथ और NDMA के साथ इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं पाकिस्तान की मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी क्लाइमेट की बात आती है, अर्ली वार्निंग की बात आती है, अवेयरनेस की बात आती है, तो वो इस पर बड़ा सीरियसली अपने शोज़ भी करते हैं, बुलेटिन में भी टाइम मिलता है, टॉक शोज़ भी होते हैं, एयर टाइम भी डेडिकेट करते हैं और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर। तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले आवर रोल इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए ज़रूरी है कि ज़िली सतह पर इदारों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाया जाए। पाकिस्तान
کے اندر جو سب سے زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کا وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. ہمیں ایمرجنسی کے لیے پاور کرنا پڑے گا. سب سے بہتر تو ڈسٹرکٹ لیول ہے. ایسا سسٹم ہو کہ وہاں پہ اختیارات ہوں کہ فوری طور پہ وہ ایکٹ کر سکیں اور جو ہمارا ایک نقصان ہے اسے بچا جا سکے. آبی وسائل کے وفاقی وزیر محمد معین وٹو نے کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ناگزیر ہے. دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کی تکمیل سے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی. ایک ہمیں مسئلہ ہے کہ فلڈ کی صورتحال سے کیسے نبوردہ جمع ہونا ہے. پاکستان میں شارٹیج آف واٹر ہے, اس سے کیسے جو ہم نے نپٹنا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں جو سٹوریج آف واٹر ہے اس کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوگی اور اس کے جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس میں اضافے کی انتہائی ضرورت ہے. این ڈی ایم اے کے حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ رواں سال مانسون سیزن میں ہمیں غیر معمولی بارشوں کا سامنا رہے گا. کہیں زیادہ بارشیں اور کہیں بارشیں توقع سے کم ہونے کے امکانات ہیں. ملک کے شمالی اور مشرقی حصے زیادہ مانسون کے زیر اثر ہوں گے. عمر فاروق, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. آزاد جموں کشمیر الیکشن کی بات کریں گے. قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. انتخابی عمل کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوئی اور اب تک موصول 8 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 5 جبکہ پیپلز پارٹی نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے, جبکہ باقی 5 میں سے 4 نشستوں پر بھی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو واضح برتری حاصل ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں میں قانون ساز اسمبلی کی نشست 1 میرپور 1 سے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. اسمبلی کے حلقہ 4 میرپور 4 سے چوہدری رخسار احمد نے 22,376 ووٹ, جبکہ اسمبلی حلقے 7 بھمبر 3 سے طارق فاروق نے 37,613 ووٹ حاصل کیے. مسلم لیگ نون کے دیگر امیدواروں میں اسمبلی کی نشست 12 کوٹلی 5 سے راجہ ریاست خان نے 35,168 ووٹ, جبکہ ایل اے 11 کوٹلی 4 سے راجہ محمد آصف نے 26,270 ووٹ لے کر میدان مارا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں میں ایل اے 2 میرپور 2 سے قاسم مجید 13,378 ووٹ, ایل اے 8 کوٹلی 1 سے ظفر ملک 19,535 ووٹ, جبکہ ایل اے 3 میرپور 3 سے چوہدری یاسر سلطان 12,590 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. آزاد جموں کشمیر عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. ابتدائی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے. ایل اے 1 میرپور 1 یہاں سے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کا شریف ہے جناب اظہر صادق اور انہوں نے 15,427 ووٹ حاصل کیے, اور دوسرے نمبر پر محمد افسر شاہد جنہوں نے 9,832 ووٹ لیے, اور کامیاب ہونے والے امیدوار کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے. چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفاف طریقے سے مکمل ہوا. تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا اور لوگوں کی بڑی تعداد نے پرامن ماحول میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. انتخابات کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں نہ صرف اچھی گہما گہمی رہی بلکہ سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا جو کہ ایک شفاف انتخابی عمل تھا. ایکس پر اپنے بیان میں عطا اللہ طاہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے. ابتدائی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو پہلے مرحلے میں واضح برتری حاصل ہے. نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے اچھا الیکشن لڑا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات میں حلقہ ایل اے 41 ویلی مہاجر نشست سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا, جہاں مختلف مقامات پر کارنر میٹنگ سے خطاب کیا. ننکانہ صاحب کی کشمیری برادری نے 2 اگست کو ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں محمد عامر شاہ کی حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی خدمت کی سیاست پر اعتماد کا اظہار کیا اور آئندہ مراحل میں بھی کامیابی کی امید ہے.
वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से सुबुकदोश होने वाले आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फराहदोफ ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। जाम कमाल खान ने आज़रबाईजान के सफ़ीर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनके दौर में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात तारीख़ी बुलंदियों तक पहुँचे। 8वीं मुश्तरका वज़ारती कमीशन, तरजीही तिजारती मुआहदे और मुख्तलिफ मुफ़ाहमती यादाश्तों से माशी ताउन को नई जहत मिली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफ़र इकबाल की रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें रुकन कौमी असम्बली ज़ेब जाफ़र, रुकन सूबाई असम्बली इशरत अशरफ समेत दीगर शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर, जमहूरी इस्तेहकाम और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सैदाल खान ने कहा कि चौधरी जाफ़र इकबाल जैसे मुदब्बिर सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कीमती असासा है। मुलाकात में बाहमी मुशावरत, सियासी रवादारी और कौमी मफादात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा किया गया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हालिया मानसून बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा वादी सरन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुतासरा मकानात, तबाहशुदा पुलों, वाटर सप्लाई स्कीमों, राबता सड़कों और दीगर बुनियादी ढांचे का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि दौरे का मकसद नुकसानात का जायज़ा लेकर वज़ीर आज़म को आगाह करना है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए बहाली के काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र FC बलोचिस्तान नॉर्थ का ज़िला नसीराबाद में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। FC बलोचिस्तान ने मौसर इमदादी कार्रवाई करते हुए मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और सैलाब मुतासिरीन को बर वक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के साथ मुतासिरीन में खुराक, साफ़ पानी, तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी इमदादी सामान तकसीम किया। सैलाब से मुतासर इलाकों में FC बलोचिस्तान और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ बिला ताअत्तुल जारी हैं। शदीद बारिशों से मुतासरा जगलोड स्कर्दू रोड पर RD25 के मकाम पर हरामोश पुल की बहाली का काम मुकम्मल कर दिया गया है। NHA के तर्जुमान के मुताबिक पुल को हंगामी बुनियादों पर तामीर नो के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और आमदोरफ्त बिला ताअत्तुल जारी है। नाज़रीन, शेखपुरा की तहसीलों फेरोज़वाला और मुरीदके में बरसाती नालों के ओवरफ्लो होने से सैकड़ों एकड़ अराजी, फसलें और मुतादिद आबादियाँ ज़ेर आब आ गई हैं। नाला डेक और नाला भेड़ और दीगर बरसाती नालों में तुगयानी के बायस ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 ने मुतासरा इलाकों में 13 रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जहाँ इमदादी सरगर्मियाँ 24 घंटे जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राना एजाज अहमद के मुताबिक 50 रेस्क्यू स्काउट्स और 15 कश्तियाँ इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। दरियाए सतलुज में हेड सलवानकी के मकाम पर पानी की आमद 17,532 और अखराज 5,438 है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया पाकपतन ने तमाम तर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तफसील के लिए अब्बास अली आफी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने बाबा फरीद पुल के मकाम पर दरियाए सतलुज का तफसीली दौरा किया और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। इस वक्त दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 17,532 क्यूसिक और अखराज 5,438 क्यूसिक है, जबकि 50,000 क्यूसिक पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा होता है। महकमा अनहार ने दरिया में पानी की सूरत हाल, हिफाजती पुश्तों, फ्लड बंदों, हसास मकामात, मशीनरी, अफरादी कुव्वत और हंगामी मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने मुख्तलिफ हिफाजती मकामात का मुआयना भी किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला
और असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को हदायत की कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक दरियाए सतलुज की मुसलसल निगरानी, हिफाजती बंदों की मौसर देखभाल, मशीनरी की बरवक्त फ़ालियत और बैनुल इदारा जाती राब्ते को मजीद मजबूत बनाया जाए और हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर वसाइल हमवक्त तैयार रखे गए हैं। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। कालादम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नेहाद दावे आश्कार, रावलाकोट में गिरफ्तार कारिंदे के होशरुबा इंकशाफात। वीडियो में कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासिर मुतादिद हथियारों के साथ वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इलाके में इंतशार फैलाने के लिए कालादम तंजीम के मुसल्लह शरपसंद अनासिर कश्मीरी अवाम समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदा ज़ुहैब खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। कालादम एक्शन कमेटी के सरगना की जानिब से बदअमनी फैलाने के लिए कारिंदों को जदीद अमरीकी साख्ता राइफलें फराहम किए जाने का इंकशाफ। कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से रेंजर्स या पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस की, ये बताया है ज़ुहैब खालिद ने। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। कालादम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नेहाद दावे आश्कार हो गए हैं। रावलाकोट में गिरफ्तार कारिंदे के होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। वीडियो में कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर मुतअद्दिद हथियारों के साथ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये मनाज़र भी इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छतों पर मौजूद ये कालादम कमेटी के नाम नेहाद अफराद किस तरह असलहा उठाए सरेआम फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रावलाकोट में गिरफ्तार कारिंदे ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं इस हवाले से, और कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदे ज़ुहैब खालिद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और ये इस वक्त आप मनाज़र अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कालादम एक्शन कमेटी के सरगना की जानिब से बदअमनी फैलाने के लिए कारिंदों को जदीद अमरीकी साख्ता राइफलें फ्राहम किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से रेंजर या पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम जो है वो मुख्तस की गई थी, ऐसा कहना है ज़ुहैब खालिद का। कालादम एक्शन कमेटी का मुसल्लह कारिंदा ज़ुहैब खालिद गिरफ्तार। कालादम एक्शन कमेटी के सरगना की जानिब से बदअमनी फैलाने के लिए कारिंदों को जदीद अमरीकी साख्ता राइफलें फराहम किए जाने का इंकशाफ। कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से रेंजर्स या पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस की गई थी, ये बताया है गिरफ्तार कारिंदे ज़ुहैब खालिद ने। कालादम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नेहाद दावे आश्कार हो चुके हैं। रावलाकोट में गिरफ्तार कारिंदे ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वीडियो में कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासिर मुतअद्दिद हथियारों के साथ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इलाके में इंतशार फैलाने के लिए कालादम तंजीम के मुसल्लह शरपसंद अनासिर कश्मीरी अवाम समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कालादम एक्शन कमेटी का मुसल्लह कारिंदा ज़ुहैब खालिद गिरफ्तार हुआ, जिसने बताया है कि कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से रेंजर्स या पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस की गई है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। ये रावलाकोट के मनाज़र हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कालादम एक्शन कमेटी जो है नाम नहाद इस एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के जो दावे हैं वो आश्कार हो चुके हैं। रावलाकोट में गिरफ्तार कारिंदा है ज़ुहैब खालिद, जिसने होशरुबा इंकशाफात भी किए हैं। और आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासिर मुतअद्दिद हथियारों के साथ वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और वो रावलाकोट में जो ऊंची इमारतें हैं उनकी छतों के ऊपर असलहे समेत मौजूद हैं। और उनको ये टास्क दिया गया था कि अगर उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर वो रेंजर या पुलिस के किसी एक जवान को भी शहीद करते हैं। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदे ज़ुहैब खालिद जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने ये होशरुबा इंकशाफात किए हैं। आपको बताएं कि नाम नहाद कालादम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के दावे जो हैं वो आश्कार हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ रावलाकोट के अंदर जो है वो ये फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद वहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं उनके ऊपर मुसल्लह अफराद जो हैं उन्होंने अटैक किया है।
اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال 28 جولائی کو ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ہیپاٹائٹس سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنا، بروقت تشخیص اور مؤثر علاج کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی کتیبہ ثنا۔ ہیپاٹائٹس جگر کی ایسی بیماری ہے جو وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اور خاموشی سے انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، تاہم ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ جگر کی خرابی، جگر کے سرطان اور دیگر جان لیوا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ رواں برس عالمی یوم ہیپاٹائٹس کا موضوع لیٹس بریک اٹ ڈاؤن رکھا گیا ہے، جس کا مقصد ہیپاٹائٹس سے متعلق غلط فہمیوں کا خاتمہ، بروقت تشخیص، مؤثر علاج اور اس بیماری کے مکمل خاتمے کے لیے عالمی سطح پر شعور بیدار کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق محفوظ خون کی منتقلی، جراثیم سے پاک سرنجوں اور طبی آلات کا استعمال، بروقت ویکسینیشن، باقاعدہ اسکریننگ اور بروقت علاج کے ذریعے اس بیماری پر مؤثر انداز میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہیپاٹائٹس بی اور سی، اور جو مین ہیپاٹائٹس ہے وہ بیسیکلی کرونک ہیپاٹائٹس کرتے ہیں اور وہ خون سے لگتے ہیں۔ تقریباً 15 ملین کے لگ بھگ اس بیماری کا شکار ہے۔ WHO نے ایک ڈیڈ لائن ہمیں دی ہے، ہمیں نہیں انفیکٹ پوری دنیا کو دی ہے، کہ 2030 تک ہیپاٹائٹس بی اور سی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا عالمی دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ باقاعدگی سے طبی معائنہ اور بیماری کی علامت ظاہر ہونے پر فوری طور پر مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور بروقت تشخیص اور احتیاط ہی ہیپاٹائٹس کے خاتمے کی جانب اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ کتیبہ ثنا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آج ہیپاٹائٹس کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ اس خطرناک مرض کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کو فروغ دیا جائے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہیپاٹائٹس صحت عامہ کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لاکھوں افراد تشخیص میں تاخیر، ناکافی آگاہی اور غیر مؤثر طبی سہولیات کے باعث خاموشی سے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال سے نہ صرف ہمارے نظام صحت پر بوجھ پڑ رہا ہے بلکہ قومی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے عوامی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس مرض سے بچاؤ کے لیے ضروری معلومات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے خلاف مؤثر جدوجہد کے لیے مربوط اور منظم قومی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان ہیپاٹائٹس کے عالمی دن پر دنیا کے ساتھ مل کر اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے اور کئی دہائیوں سے صحت عامہ کے اس مسئلے سے دوچار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس قابل انسداد اور قابل علاج مرض کے سدباب کے لیے 2025 میں وزیر اعظم قومی پروگرام برائے خاتمہ ہیپاٹائٹس سی کا آغاز کیا، جو ایک تاریخی اور غیر معمولی اقدام ہے۔ عوام تک ان خدمات کی آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے موبائل اسکریننگ پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم سب صحت مند پاکستان کی تعمیر کے اپنے عہد کی تجدید کریں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتنۃ الہندوستان BLA کے دہشت گرد بلوچستان کے عوام کے جان و مال کے دشمن بن گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے کوئٹہ میں پٹیل روڈ پر حملہ کیا گیا۔ بزدلانہ حملے میں ایک شہری شہید جبکہ ایک بچے سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی بچے ابرار احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنے علاج کے لیے کوئٹہ میں پٹیل روڈ پر واقع ہسپتال آیا تھا۔ فیملی کے ہمراہ ہسپتال سے باہر آ رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہوا۔ دھماکے میں زخمی وزیر خان نے کہا کہ ورک شاپ سے کام مکمل کر کے دوستوں کے ہمراہ گھر جا رہا تھا کہ دھماکے کی زد میں آ گیا۔ ماہرین کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور خوف و ہراس کی فضا قائم کرنے کے لیے مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ساتھ حالیہ دنوں میں مسلح مخالف گروپس کی جھڑپوں نے رجیم کے افغانستان پر مکمل کنٹرول کے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ طالبان رجیم کے خلاف افغان نوجوانوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہی ہے۔ NRF کے دعوے کے مطابق بدخشاں، بلخ، پنشیر سمیت مختلف علاقوں سے 2000 سے زائد نوجوان مزاحمتی تنظیموں میں شامل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب افغان صحافی عثمان بازگر کے مطابق فریڈم فرنٹ نے زیباک میں طالبان کی چوکی پر قبضے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق افغان سفارتکار فیاض غیاسی نے افغان طالبان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں آزادی کو کچل دیا گیا، تاہم بدخشاں سمیت شمالی اور شمال مشرقی صوبے طالبان سے آزاد کرائے جائیں گے۔
हिंदू इंतहा पसंदी के गलबे के लिए इक़्तिदार में कायम मोदी सरकार अपनी नाअहली पर तनकीद को दबाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। मोदी हुकूमत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दबाने के बाद सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मवाद हटाने के लिए कह दिया। मायूस भारतीय नौजवान वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऑनलाइन पोस्टों और मीम्स के जरिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। पुलिस ज़राए ने तस्दीक की है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मवाद की निशानदही का अमल पहले ही जारी है। दीवार के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं है कि मवाद हटाने की कार्रवाई पुलिस किस कानूनी इख्तियार के तहत कर रही है। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 2021 से IT कानून में तरमीम के जरिए ऑनलाइन मवाद पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबा गैर मामूली तरक्की करते हुए कौमी मईशत का एक अहम सुतून बनकर उभरा है, जिसमें खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का कलीदी किरदार रहा। तफसील से आगाह करेंगी अनीता अजीज। माली साल 2026 के दौरान IT और ICT बरामदात में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर $4.6 अरब की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गए। इस अरसे में IT शोबे ने $3.9 अरब का तिजारती सरप्लस हासिल किया, जो पाकिस्तान के सर्विस शोबे की तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस है। फ्रीलांसर्स की तरसीलात ज़र में भी 78% इजाफा हुआ और ये $1.76 अरब तक पहुंच गईं। ये तारीखी पेशरफ्त हुकूमत की जामा इक़दामात का नतीजा है, जिसमें डिजिटल महारतों के फ़रोग़ के प्रोग्राम, टैक्स मराद और गैर मुल्की करेंसी में आमदन के लिए बेहतर सहूलियात शामिल हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजी में तवील मुद्दती क़यादत के उसूल के लिए हुकूमत ने कौमी मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 मुतारिफ कराई है, जिसके तहत 2030 तक मसनूई ज़हानत की तहकीक और खुद मुख्तार कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 अरब मुख्तस किए गए हैं। हरीपुर में कायम सीनो पार्क सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नस्ट में कायम नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद तहकीक, तालीम और जिद्दत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। SIFC की माउनत और हुकूमती इस्लाहात के तसलसल से पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशियत और मसनूई ज़हानत के शोबे में एक नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ारत मज़हबी उमूर ने आइंदा साल आज़मीन हज के लिए पासपोर्ट तजदीद के अमल में अहम सहूलत फराहम की है, जिसके तहत आज़मीन हज मुकर्ररा मुद्दत से पहले भी पासपोर्ट तजदीद करा सकेंगे। आइंदा साल हज पर जाने के लिए 16 नवंबर 2027 तक मौसर पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजमी करार दिया गया है, जबकि पासपोर्ट दफातर को कबल इस वक्त तजदीद की दरखास्तें वसूल करने की हिदायत की गई है। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट के बगैर हज 2027 की दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। और रुकने कौमी असम्बली आसिया नाज तनोली ने अटक का दौरा किया, जहां उन्होंने ख़वातीन में दस्तकारी किट्स तकसीम की। इस मौके पर आसिया नाज तनोली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे के तमाम अज़ला में ख़वातीन को फलाह बहबूद के दौरे किए जा रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना है। आसिया नाज तनोली ने कहा कि हुकूमत पंजाब ख़वातीन को हुनरमंद बनाने और उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ करा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी फलाह बहबूद के ये मनसूबे मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। डेप्यूटी स्पीकर गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली मलिक किफ़ायतुर रहमान ने कहा है कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए देर पा अमन बुनियादी शर्त है। ज़िला क़यामत समेत तमाम अज़ला के अवाम बाशऊर हो चुके हैं और अमन दुश्मन अनासर को हमेशा मुस्तरद किया है। गिलगित में PTV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तांगेर सियाहत के हवाले से इंतहाई अहम इलाका है, जहाँ मौजूदा सियाहती सलाहियत को बरोए कार लाकर तरक्की के नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। दयामर भाषा डैम और दासू डैम के दरमियान वाक़ तांगेर वैली के अवाम को रोज़गार, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली शाहिद अब्बास काठिया ने मियाँ वाली शहर के मेन बाजार का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने टफ टाइल्स की तनसीब के काम का मुआयना करते हुए खामियों पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि दोबारा खुदाई से मुतासरा मकामात पर टफ टाइल्स की बहाली और मरम्मत 10 रोज़ में मुकम्मल की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि आइंदा किसी भी तरक्याती मनसूबे से कबल तमाम मुतल्लिका महकमों से राब्ता यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सफाई, ड्रेनेज और सीवरेज लाइनों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की।
मंडी बहाउद्दीन में सिविल डिफेंस और प्रोबेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट के हवाले से तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब, एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस रज़ाकारान, प्रोबेशन अफसरान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका को फायर फाइटिंग आलात के दुरुस्त इस्तेमाल, इब्तदाई हिफाजती इक़दाम और हंगामी सूरत हाल से निमटने की अमली तरबियत दी गई। राजा हैदर अब्बास ने कहा कि महफूज और बाखबर मुआशरे की तश्कील वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन का अहम हिस्सा है। और सोशल मीडिया के इस दौर में दोस्तियां पल भर में बनती हैं और कभी कभार यही दोस्तियां ज़िंदगी भर का रिश्ता भी बन जाती हैं, लेकिन हर बार ये कहानी खुशगवार अंजाम पर नहीं पहुंचती। ऐसी ही एक कहानी फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाली रोज़ी की भी है। सोशल मीडिया दोस्ती से शादी तक का सफ़र कितना महफूज है, इस बारे में बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधरा के इलाका मुंडाली मोड़ के रिहायशी मोहम्मद आमिर और फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाली रोज़ी की साल 2022 में दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, जो 2 साल पहले शादी में बदल गई। रोज़ी ने अपना वतन छोड़ा और नई ज़िंदगी की उम्मीद लेकर पाकिस्तान आ गई। शादी के बाद हालात बदल गए। अब रोज़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शौहर और उसके घर वालों की तरफ से तशद्दुद और नारवा सलूक का सामना है। पुलिस ने फौरी इस पर रिस्पॉन्ड किया, उसको रेस्क्यू किया। उसकी सेफ़ रिकवरी के बाद उसकी हर ओन विल उसकी एक दोस्त जो वो भी फॉरनर हैं और वो यहाँ पे एक दूसरे हमारे भाई के साथ शादी करके रह रही हैं, वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया। वहाँ पुलिस गार्ड उनको दी गई, सिक्योरिटी दी गई और उसके बाद उनकी कंप्लेंट पे एक FIR दी गई और उस FIR में जो उनकी वैल्यूएबल्स थी, जो उनका सामान था, वो रिकवर करके उनके हैंड ओवर किया गया। On this case, we are very grateful for all the help of the Lodra authorities, especially to SHO, DSP and DPO, to all the friends. थाना सदर लोधरा ने रोज़ी की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लेकर उसे महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया और नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तंजीम पाक मीडिया फोरम के ओहदेदारान का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मीडिया इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाक मीडिया फोरम की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में सहाफ़ियों समेत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक थीं। इस मौके पर पाक मीडिया फोरम के चेयरमैन इलियास रहीम, वाइस चेयरमैन वकार नसीम वामिक, जनरल सेक्रेटरी अजमल मिन्हास का कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बाइस मीडिया इंतहाई अहमियत का शोबा है और किसी भी मुल्क तहजीब व तमद्दुन और सकाफत के साथ साथ इसके सियासी और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मीडिया अहम किरदार अदा करता है। और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ और उन्हें नुमायां करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और पाक मीडिया फोरम पाकिस्तानी और सऊदी मीडिया पर मुश्तमिल फोरम है, जिसने हमेशा दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर किया है। तकरीब से अदनान इकबाल भट्ट, मामूर इलाही, शेख जायद और दीगर का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है, जिसमें 28 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुकामी कवानीन का एहतराम किया जाए और इस हवाले से मीडिया भी अपने हमवतनों की रहनुमाई कर सकता है। और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी अपना ये फरीज़ा एहसन अंदाज से अदा कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फरीज़ा, नरजिस और अब्दुस्समद ने भी पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। वकार नसीम वामिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। मुझे अमराज और कैंसर समेत थैलीसीमिया के मरज़ में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेक अ विश फाउंडेशन के ज़रिए तमाम एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में मेक अ विश फाउंडेशन में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात को असनाद दी गई। तफसील से आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। मूजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की मुस्कुराहटों को अपनी कामयाबी समझने वाली मेक अ विश फाउंडेशन एक बार फिर उम्मीद और खुशियों का पैगाम लेकर सामने आई। तकरीब से खिताब करते हुए मेक अ विश फाउंडेशन के सरबराह मारूफ सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि मेक अ विश फाउंडेशन सिर्फ बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं करती, बल्कि उनके दिलों में उम्मीद और ज़िंदगी का नया हौसला पैदा करती है। वो बच्चे जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश है उसको पूरा करता है। आज जो ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है,
इसमें मेक ए विश के कई बच्चों की जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला थे उनकी विशेष को पूरा किया गया है। मेक अ विश फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि ये बच्चे हमारी खुसूसी तवज्जो के तलबगार हैं और फाउंडेशन इस कार्य खैर को एहसन अंदाज से अदा कर रही है। इस फाउंडेशन का असल मकसद है कि इनके चेहरे पर खुशी लेकर आई। इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ पे ऐसे टर्मिनली इल बच्चों से मिलने के बाद उनकी विशेस पूछने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी नॉर्मल रूटीन में शामिल है आप उनको बहुत बड़ा करके देखने लगते हो। यहाँ काम करने के बाद हमें पता चला कि हम अपनी डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, इन बीमारियों से गुजर रहे हैं, हम उन चीज़ों पर फोकस करना छोड़ देते हैं। बाद में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तुलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की गईं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।